Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Food Safety Surveillance System 2, Part 2. Let's start our topic today. Food safety is defined as the provision of safe, nutritious, and wholesome food for the masses. It provides the assurance that food will not cause any harm to the consumer when it is prepared or eaten according to intended use. The basic aim of any food system is to protect the food from possible contamination and especially the consumer from the toxicity, diseases, ailments caused due to the intake of unsafe food. Keeping customers and employees safe will help to make the industry a better location to work in and a place where customers will willingly return. According to FAO, Food Agriculture Organization and World Health Organization, food control system is the mandatory regulatory activity of enforcement by national and local authorities to provide consumer protection and ensure that all foods during production, handling, storage, processing, and distribution are safe, wholesome, and fit for human consumption, conform to safety and quality requirements, and are honestly and accurately labeled as prescribed by law. There are several quality systems involved to achieve the targets set by FAO and WHO. These include total quality management, uh, good manufacturing practices, hazard analysis and critical control points, and food safety management system. For ethnic food, a number of certification systems have emerged, among which kosher and halal food certification deal with food consumed by Jews and Muslims, respectively. The primary mandate of all these systems is to provide the consumer with food which is safe and according to his defense. So अब तक जितने भी यानी हमारे लेक्चर हुए हैं तो उस पर जो मेन फोकस था वो फूड सेफ्टी का था कि जो फूड प्रिपेयर करनी है विद इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो वो फूड सेफ हो जो ताकि जो कंज्यूमर की स्पेसिफिकेशन है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सके और इसके अलावा इंडस्ट्री स्मूथली रन हो प्रोडक्शन लाइन तो डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हमने यूज़ किए थे लाइक सैनिटेशन वगैरह या क्लीनिंग वगैरह के जो फूड प्रेमिसेस वगैरह को साफ वगैरह करके तो ताकि जो फूड है उसे सेफ बनाया जा सके इसके अलावा जो इंसेक्ट्स रोडेंट्स वगैरह उसकी एंट्री को रोका जा सके उसके अलावा जो ड्रेनिंग वगैरह है और इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है या जो लेबोरेटरीज फैसिलिटीज वगैरह हैं तो डिफरेंट टाइप्स के यानी कि पैरामीटर यूज किए जाते हैं सिर्फ एक सिंगल मकसद के लिए वो है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर कैसे किया जाए तो इसके अलावा डिफरेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट फूड इंडस्ट्री फॉलो करती हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं वो हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और इसके अलावा हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और इसके अलावा FSO ISO 2005 और इसके अलावा विंड्स वर्क हैजर्ड इंफॉर्मेशन मटीरियल सिस्टम इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं लाइक हलाल फूड सर्टिफिकेशन के जो भी प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो हर कोई नहीं लिख देगा कि ये हलाल फूड से बनी है या जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं वो हलाल हैं लाइक के अगर मसलन जेलाटिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो जेलाटिन जो हड्डियों से बनता है जानवरों की तो जो जेलाटिन है वो भी हलाल सोर्स से होना चाहिए फिर ही हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हलाल है अगर जेलाटिन पॉर्क वगैरह की हड्डियों से बना हुआ है तो इसका मतलब है जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट तो वो सेफ नहीं है हलाल नहीं है अनलॉफुल है तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक TQM total quality management. Total quality management is a set of management practices or approach throughout the organization geared to ensure that
organization consistency meet to the customer requirements. तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो कि इंश्योर करता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके. It places strong focus on the process measurements and controls as means of continuous improvement. TQM improves the quality by ensuring conformance to internal requirements. The main driving force of TQM is long-term success through the customer satisfaction. तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है सक्सेस की वो यही है कि जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, deployment and maintenance of organization system that are required for various business processes. The basis of TQM is to minimize the error occurring during the manufacturing or services process. तो जो मेन एम्फेसिस है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वो क्या क्या है उसमें नंबर 1 है कि इट मिनिमाइज द एरर अकरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस. कि कोई भी किसी किस्म का जो एरर है आ रहा है फूड प्रोडक्शन में तो उसे मिनिमाइज किया जा सके, उसे कम किया जा सके. इसके अलावा जो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन है यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की. नंबर 1 ये है कि जो प्रोडक्ट है वो चीपर हो एज कम्पेयर टू द मार्केट, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं वो गुड हों यानी कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हो. इट डज नॉट कंटेन एनी हार्म इंग्रेडिएंट और सब्सटेंसेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसके अलावा स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. तो डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट को रन करने के लिए या प्रोडक्शन को फ्लो करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स, एसिडिटी एजेंट्स और डिफरेंट टाइप की. तो पैकेजिंग मटेरियल, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो स्मूथ होनी चाहिए. इसके अलावा मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट, तो यानी कि ये नहीं कि पुराने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते रहने हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जिद्दत आती है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं, मसलन के हम पुराने यानी कि विद एंशियंट टाइम्स यानी कि खुराक को महफूज करने के लिए फॉर एग्जांपल हम ड्राई करते थे, सन ड्राइंग वगैरह, या फिर उसे यानी कि ड्रायर वगैरह आ गए इस तरह, यानी कि कूलिंग वगैरह करते थे टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ. तो अब डिफरेंट टाइप्स की एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. तो उनमें से एक नंबर 1 है कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग. तो इसमें हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे प्रिजर्व किया जा सके, मोर न्यूट्रिएंट्स गेन कर सकें. क्योंकि जो डिफरेंट पुराने तरीके हैं वो उनको जब फॉलो करते हैं तो न्यूट्रिशन लॉसेस वगैरह होते हैं. तो इसी तरह यानी कि जो हीटिंग का जो प्रोसेस है उसमें आ जाता है कि ओमिक हीटिंग है, ये भी एक एडवांस फॉर्म है हाई प्रोसेसिंग की. तो इसमें जो हीट वगैरह खुराक को दी जाती है तो वो यूनिफॉर्म और कॉन्टीन्यूसली होती है, तो इससे भी जो न्यूट्रिएंट्स लॉस है वो कम से कम होते हैं. तो इसके अलावा यानी कि इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो हमने मॉडर्नाइज करने हैं. ये नहीं कि वो पैसे बस कंपनी कमाई है, ये जो फूड इंडस्ट्री है तो ये नहीं कि वो ऊपर इंडस्ट्री पे कुछ लगाए या एक्सपेंशन वगैरह करे. एंड इंश्योर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग. तो जो पर्सोनल वगैरह वहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई ब्रॉड होती हैं, कोई विद इन द कंट्री होती हैं. तो जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए. इन a TQM, all members of the organization participate in improving process, product, services and culture in which they work. तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं ऑल द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, services or culture in which they work. One of the principal aim of TQM is to limit the error to 1 per 1 million units produced. तो जो मेन प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का वो ये है कि जो एरर है यानी कि वो इतना कम से कम होना चाहिए कि 1 पर मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस. तो जितने अगर 1 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें एरर जस्ट 1 होना चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट इज GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो ये भी एक अहम टूल है टू इंश्योर फूड सेफ्टी फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द टिल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डिस्पैच आर स्टोर्ड इन द वेयरहाउस. Good manufacturing practices is a quality system designed to ensure production of good quality products in a clean and safe environment. जो good manufacturing
प्रैक्टिस है, ये क्वालिटी सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया होता है इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यानी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो गुड क्वालिटी की हों और क्लीन और साफ एनवायरनमेंट में जो हैं वो प्रोड्यूस हों। क्वालिटी इज अ नटशेल रिलेट्स टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से। दिस सिस्टम इज कंपोज ऑफ गाइडलाइंस that outline different aspects of production and testing which can have an impact on the quality of a product. Good manufacturing practices lie at the heart of the quality and comprise a variety of practices that include नंबर वन क्वालिटी इंश्योरेंस और रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ए ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उसमें कोई कंटेमिनेशन वगैरह है या इम्प्योरिटीज वगैरह हैं तो उसे वो प्रॉपर्ली रिमूव किया जा सके। नंबर टू है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जितना भी मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स है, केमिकल्स हैं और इसके अलावा डिटर्जेंट्स वगैरह जो सफाई सुथराई के लिए हैं, इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसके अलावा लिक्विड जो भी वट एवर कुछ भी चीज़ें जो भी यूज़ हो रही हैं तो उसका हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसलिए होता है कि फॉर ट्रेसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है विद इन द प्रोडक्ट तो जो लॉट नंबर है उसे हम ट्रेस करके जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसे यानी कि कस्टमर तक पहुंचने से बचा सकते हैं। नंबर थ्री है स्टैंडर्ड्स फॉर क्लीननेस एंड सेफ्टी। तो डिफरेंट टाइप के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। तो क्लीनिंग वगैरह आप लोग जानते हैं, ड्राई वेट क्लीनिंग और डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते हैं टू इंश्योर सेफ्टी। नंबर फोर है क्वालिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल। तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं विद इन द फूड प्रेमिसेस या फूड इंडस्ट्री में जो पर्सनल काम कर रहे हैं हाईली क्वालिफाइड हैं तो उनकी यानी कि प्रॉपर यानी ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए। ये नहीं कि अनट्रेंड पर्सन हो तो वो खुराक को तैयार करना शुरू कर दे। इन हाउस टेस्टिंग है यानी कि डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स वगैरह बन रही हैं तो डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स वगैरह बन रही हैं तो उनकी प्रॉपर इन हाउस टेस्टिंग वगैरह की जाए ताकि ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो सेफ हैं, अदर के सेफ हैं या नहीं है। और नंबर सिक्स है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस कंट्रोल। तो जो भी प्रोडक्शन और प्रोसेसेस वगैरह जो हैं वो अंडर कंट्रोल होने चाहिए। इसके अलावा वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेयर हाउसिंग है उसका आपने रूल एक बड़ा था कि जो फर्स्ट चीज़ जो स्टोर की जाती है तो उसे निकलना भी पहले चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ एक साल पहले की स्टोर है वो स्टोर में वेयर हाउसेज में पड़ी रह जाए और जो दूसरी चीज़ें हैं मसलन जो 6 माह पुरानी है या 3 माह या 2 माह पुरानी है वो पहले निकलती रहे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा द जीएमपी इन्वॉल्व basic guidelines starting from receiving of the materials till the final production and also the recall the traceability procedures. तो जो GMP है जो ये प्रोवाइड करती है बेसिक गाइडलाइंस फ्रॉम रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फिनिश प्रोडक्ट डिस्पैच। और इसके अलावा जो रिकॉल द ट्रेसेबिलिटी प्रोसीजर यानी कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी किस्म का फॉल्ट आ गया तो वो लॉट नंबर आइडेंटिफाई हो सके और उस लॉट आइडेंटिफाई हो गए जो डिफरेंट जो कार्टून्स वगैरह पड़े हैं विद इन द वेयर हाउस तो उन्हें वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है दीज गाइडलाइंस आर ए सीरीज ऑफ general principle that must be observed during the manufacturing. When a company is setting up its quality program and manufacturing process, there may be many ways that can be fulfill GMP requirements. It is a company responsibility to determine the most effective and efficient quality process. तो यानी कि जो GMP है ये डिफरेंट यानी कि सेट ऑफ सीरीज है, ये प्रिंसिपल हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस। तो ये डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं तो वो सारे फुलफिल हो सकते हैं इजीली। इट इज़ अ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यानी जो भी यानी कि जो फूड इंडस्ट्री है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह का इफेक्टिव और एफिशिएंट क्वालिटी प्रोसेस यूज़ करती है। नेक्स्ट है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। हैसब इसे शॉर्टली कहते हैं। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इज अ कांसेप्ट दैट हैज इट्स ओरिजिन इन यूएस आर्मी एंड नासा। तो जो हैसब प्रोग्राम था ये स्टार्ट हुई अमेरिका से, अमेरिका में हुआ था जो कि यानी कि आर्मी वगैरह के लिए और जो नासा जो यानी कि जो खुला में मिशन वगैरह जाते हैं तो उनके लिए जो खुराक वगैरह मुहैया करनी थी तो वो हैसब की बेसिस पे की गई थी। So the idea behind the HACCP approach to develop a plan that anticipate
and identified places in the production process, so known as critical control points where contaminants might be introduced or other food safety concerns can be identified. तो जो हैसब के पीछे आइडिया था वो ये था कि जो एक प्लान डेवलप किया जा सके जो कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके जिधर से कंटामिनेंट्स एंटर होते हैं विद इन द प्रोडक्शन लाइन, तो वेयर क्रिटिकल लिमिट्स आर एक्सीडेड, जहाँ यानी कि ये क्रिटिकल लिमिट्स एक्सीड कर जाएं तो वहाँ फिर करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन एंड डॉक्यूमेंटेड। तो हैसब के जो हैं वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 है एनालाइज हैजर्ड्स, तो यानी कि एनालिसिस वगैरह करना है कि जो आइदर हैजर्ड इज प्रेजेंट और नॉट, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 4 5 10, यानी कि वो प्रोडक्शन लाइन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो एस्टेब्लिश नंबर 3 है एस्टेब्लिश प्रिवेंटिव मेजर विद क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच कंट्रोल पॉइंट्स। तो जो प्रिवेंटिव मेजर है यानी कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है जहाँ से जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं ऐड होने के वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर तैयार की जाती हैं। एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू मॉनिटर सीसीपी, तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करके जो सीसीपी हैं उनके उनके सीसीपी को मॉनिटर किया जाता है। नंबर 5 है करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन, तो जो उन सीसीपी को कंट्रोल करने के लिए अगर वो एक्सीड कर रहे हैं तो फिर करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन। तो फिर नंबर 6 है वेरिफिकेशन प्रोसीजर, तो वेरिफिकेशन प्रोसीजर में ये आ जाता है जब करेक्टिव एक्शन टेकन कर लिया तो फिर देख लेते हैं कि सीसीपी जो है वो एक्सीड तो नहीं कर रहा, वो अंडर कंट्रोल है। तो अगर अंडर कंट्रोल है तो फिर इसका मतलब है कि जो हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है वो ठीक है, तो है सब वर्क इज गुड। तो फिर लास्ट पे आ जाता है रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी यानी कि हमने स्टेप्स वगैरह लिए हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो किए हैं, जो जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो वो सारे जो भी हैं उसकी इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है FSM ISO 22000-2005। Food safety system and food quality system were amalgamated to form a new system, that is food safety management system ISO 22000। तो जो फूड सेफ्टी सिस्टम है सब, तो उसके अलावा जो फूड क्वालिटी सिस्टम है ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ISO 9001 और हैसब जो अगर उसे मिला दिया जाए तो फिर ISO 22000 बन जाता है। इट इज ए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000। This system specify requirements for a food safety management system where an organization in food chains need to demonstrate its ability to control food safety hazard to ensure that the food safe at the time of human consumption। तो जो ये डिफरेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल की जाती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फूड चेन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कंट्रोल फूड सेफ्टी हैजर्ड टू इंश्योर दैट फूड इज सेफ एट द टाइम ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। तो मेन फोकस जो है वो फूड सेफ्टी पे है। इट इज एप्लीकेबल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज which are involved in any aspect of food chain and wish to implement system that consistently provide safe product। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन हर किस्म की है रिगार्डलेस के, यानी कि वो छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर ये एप्लीकेबल होती हैं ये ISO 22। तो ये जो भी इंडस्ट्री है साइज के लिहाज से या वो किसी किस्म के एस्पेक्ट के लिहाज से जो फूड की हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग स्टोरेज वगैरह जो भी कर रहे हैं वट एवर, तो ISO 22000 वहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए लाजमी, ताकि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सेफली प्रोड्यूस हो सकें। The means of the meeting any requirements of ISO 22000 can be accomplished through the use of internal or external resources। तो ISO 22000 specify requirements to enable an organization to number 1 है plan, implement, operate, maintain and update a food safety management system aimed at providing products that according to their intended use are safe for consumer। तो यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये कि सबसे पहले प्लानिंग है, फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, उसे मेंटेन कंडीशंस को मेंटेन कैसे रखना है और फिर उन्हें अपडेट कैसे करना है। ये नहीं कि एक ही प्लान को लेकर चलते रहना, उसमें डिफरेंट अपडेशन वगैरह यानी चेंजिंग वगैरह आ जाती हैं। तो ताकि जो मेन फोकस यही है कि जो प्रोडक्ट है वो इसका इंटेंडेड यूज है फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Number 2 है demonstrate compliance with the applicable statutory and regulatory food safety requirements। And number 3 है evaluate assesses customer requirements and demonstrate
conformity with those mutually agreed customer requirements that relate to food safety in order to enhance customer satisfaction. तो जो डिफरेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसे एवेल्यूएट करना और उसे एक्सेस करना ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके म्यूचुअली एग्री कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दैट रिलेट टू द फूड सेफ्टी इन ऑर्डर टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. Number 4 है effectively communicate food safety issues to their suppliers, customers and relevant interested parties in the food chain. तो जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना फूड सेफ्टी इश्यूज को विद इन द टू द सप्लायर्स. जो सप्लायर्स वगैरह हैं यानी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स वगैरह के मसलन रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो सकते हैं, केमिकल सप्लायर्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल के सप्लायर्स वगैरह, डिफरेंट जो भी मशीनरी के सप्लायर्स वगैरह. तो जो भी सेफ्टी इश्यूज हैं या रिगार्डिंग तो वो सप्लायर्स है वो कस्टमर्स के साथ उसे और रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज इन द फूड चेन जो, और इसके अलावा जो फूड चेन में डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना. नंबर 5 है इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म टू इट्स स्टेटेड फूड सेफ्टी पॉलिसी. तो जो यानी इंडस्ट्री की जो स्टेटेड फूड सेफ्टी पॉलिसी है उस पर वो अमल दरामद कर रही है इधर के नॉट. नंबर 6 है डेमोन्स्ट्रेट सच कन्फर्मिटी टू द रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज. और नंबर 7 है सीक कंफर्मेशन seek certification or registration of the food safety management system by external organization or make a self assessment or self declaration of conformity to ISO 22000. तो यानी कि जो ISO 22000 है तो इधर वो थर्ड पार्टी से यानी कि सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो एक्रीडेटेड बॉडीज वगैरह होती हैं उनसे उनके पहले सबसे पहले खुद कंफर्मेशन की जाती है ताकि जो हमारी जो सेफ्टी एक्शंस हैं वो हम यानी कि प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारी है वो सेफ है. तो फिर अगर वो यानी कि हमारा इंटरनल ऑडिट इंटरनल असेसमेंट ठीक है तो फिर हम जो सर्टिफिकेशन बॉडीज वगैरह हैं डिफरेंट तो उनसे सर्टिफिकेशन वगैरह की जा सकती है. अगर वो उनकी हमने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि ये कंपनी ISO 22000 लायबल है. नेक्स्ट है हलाल फूड सर्टिफिकेशन. halal food certification is basically not a safety surveillance system per se, but it is a system by which foods are certified based on Islamic injunctions. यानी कि हलाल फूड सर्टिफिकेशन जो है वो बेसिकली एक सेफ्टी सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है, बट ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे यानी कि प्रोडक्ट वगैरह जो भी हैं वो इस्लामी लॉज के मुताबिक अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हलाल है. तो इसके लिए भी डिफरेंट बॉडीज होती हैं, एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन बॉडीज वगैरह कामगारी होती हैं जो कि सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट फूड इंडस्ट्री को कि आइदर दीज प्रोडक्ट आर हलाल और नॉट. Muslims have been ordered to eat only halal, lawful, permissible foods and refrain from haram, unlawful and prohibited. जो मुस्लिम्स हैं उन्हें कुरान पाक में और हदीसों वगैरह में ये कहा गया है कि जो हलाल फूड है वो खाएं, जो लॉफुल है और परमिसिबल जिसकी इजाज़त है, और इसके अलावा जो रिफ्रेन फ्रॉम द हराम तो हराम से बचें, और अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड चीज़ों यानी अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड चीज़ों से बचें. दी हलाल और lawful animals are those that have split hooves and masticate the cud, जिनको ruminants कहते हैं. तो जो हलाल एनिमल्स या lawful animals वो होते हैं जिनके hooves split होते हैं, और masticate the cud जो जुगाली वगैरह करते हैं, ruminants जिसे कहते हैं. These include cows, buffaloes, camels, llama, deer and like these. इसके अलावा जो हलाल बर्ड्स हैं उसमें पोल्ट्री, डक, टर्की, क्वेल, सिमिलर स्पीशीज as far as the food of water origin are concerned, according to Sunni school of thought, all fish are lawful. जितनी भी यानी फिश वगैरह हैं वो lawful हैं according to Sunni school of thought, while the Asna Ashriya Shia school of thought consider only fish with fins and scales. तो जिन वो मछलियाँ जिनके fins और scales वगैरह होते हैं वो lawful हैं उनके मुताबिक, जबकि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक ऑल फिश आर लॉफुल. Another requirement of for halal is that all land animals and birds must be slaughtered in a specific manner. तो इसके अलावा जो एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जो हलाल एनिमल्स हैं उसे हलाल तरीके से के साथ स्पेसिफिक मैनर में से यानी उसे हलाल स्लॉटर वगैरह किया जाए. That ensure
कंप्लीट ब्लीडिंग। तो यानी कि वो जो स्पेसिफिक मैनर ये है कि उसमें यानी कि जो जब उसे कट लगाया जाए तो जो ब्लीडिंग वगैरह वो प्रॉपरली हो जाए, ये ना हो कि खून अभी रहता हो यानी कि तो और वो खाल वगैरह उतारना शुरू कर दे और डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड करना शुरू कर दे। फ्रॉम अमंगस फूड ऑफ प्लांट रीजन ऑल plants that nourish and don't cause harm to the human body are permitted। तो जो हलाल फूड जो प्लांट रीजन के हैं, जो ऐसे पौधे जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और किसी किस्म का हार्म क्रिएट नहीं करते फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो जो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो लॉफुल हैं। एंड ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो जो ऑल इंटॉक्सिकेंट प्लांट्स वगैरह तो वो हराम है in Islam। On the third hand, the unlawful animals are those that either don't have split hooves or don't chew the cud। तो इसके अलावा जो अनलॉफुल एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो ऐसे जानदार हैं या एनिमल्स हैं जो कि जिनके स्प्लिट हूव्स नहीं होते। इसके अलावा जो च्यू नहीं करते कड यानी कि जगाली नहीं करते, यानी अपना मुंह बार बार वैसे अगर जैसे कोई खा रहे हो। तो इसके these includes porks, carnivorous animals वगैरह। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ प्रे आर नॉट permissible इन इस्लाम। तो जो शिकार वगैरह के जानवर परिंदे हैं उनको भी वो भी हलाल नहीं है। मोर ओवर ऑल रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड पॉइजनस एलिमेंट और अनलॉफुल। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स वगैरह हैं और इसके अलावा जो पॉइजनस एनिमल्स हैं वो आर अनलॉफुल। था स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड सिमिलर एनिमल्स आर नॉट परमिटेड इन इस्लाम। तो जो सांप वगैरह हैं या चिपलियाँ वगैरह या फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। Another requirement for a food to be halal is it's being tayyib or clean। तो हलाल के अलावा यानी एक तो हलाल हो और उसका जो स्पेसिफिक मैनर है यानी कि जिससे वो हम स्लॉटरिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो जानवर है या जानदार है वो तैयब होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दिस इंश्योर दैट द फूड प्रोड्यूस फॉर द मुस्लिम मस्ट बी क्लीन एंड विदाउट एनी हेल्थ हैजर्ड। तो ये इंश्योर करता है कि तैयब अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये इंश्योर करेगा जो फूड प्रोडक्ट्स है मुसलमानों के लिए तैयार हो रही हैं या अदर पीपल्स के लिए तैयार हो रही हैं वो क्लीन है, साफ सुथरी हैं और कोई किसी किस्म का हेल्थ हैजर्ड क्रिएट नहीं करेंगी। Halal food certification involves procedure that whatever is being processed in a facility mean to the Islamic injunction। The halal certification body receive information on the ingredients and processes from the applicant company। तो जो भी यानी कंपनी जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन के लिए दरख्वास्त दी है तो वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगी कि जो जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह उस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं और इसके अलावा जो प्रोसेस वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का मायना लेंगे, जायजा लेंगे। इसके बाद वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इट देन एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन वेदर एनी अनलॉफुल इंग्रेडिएंट इज बीइंग यूज्ड और नॉट। तो फिर वो एनालिसिस वगैरह करेंगे और जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो डिटरमिन करेंगे कि इधर की जहाँ कोई अनलॉफुल इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है या नहीं। If the certification body is satisfied that the ingredients are lawful, then it sends to the audit inspectors to visit the facility। तो इसके बाद वो यानी कि जो ऑडिट इंस्पेक्टर है उसे अपनी सारी फिजिबिलिटी सेंड कर देंगे कि ये फलानी इंडस्ट्री है, इसको आप विजिट कर लें। the equipment, the processes and premises are inspected that there is no contamination from any halal source and any non-halal source। The audit inspectors also ensure that the company is following all the hygienic principles for the production of safe or tayyib food। Once satisfied, a certification is issued to the company for the specified product। अगर यानी कि वो जो फूड है ऑडिट इंस्पेक्टर है वो अगर सेटिस्फाइड हो गया है कि जो भी हाइजेनिक कंडीशन है वो फुलफिल की जा रही है, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो प्रिंसेस वगैरह वो साफ सुथरी हैं, तो वो फिर एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा उस कंपनी के नाम के ये कंपनी जो है ये हलाल फूड प्रोड्यूस कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट is an authority that the particular industry is following the Islamic principles and producing halal and safe foods for the Muslim।
तो जो हलाल से सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटी की तरफ से जब इशू किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, तो वो इस बात की गारंटी होता है कि ये जो कंपनी है ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, प्रोड्यूसिंग हलाल एंड सेफ फूड फॉर मुस्लिम। इट इज इन फैक्ट ए सेफ्टी सर्टिफिकेट एज वेल एज नॉन मुस्लिम कंज्यूमर आल्सो अट्रैक्टेड। इट इज ये भी हकीकत है कि ये जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है ये नॉन मुस्लिम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह हैं उसे उसमें भी यानी कि स्लॉटरिंग में यानी कि ये फॉलो किया जाता है कि जो इस्लामिक वे है वो गुड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी फूड सेफ्टी सर्वेलेंस सिस्टम। तो आप लोगों से एक बात करनी थी कि ये जो बुक है ये तो यानी कि मस्ट है, अभी पेपर्स का वो पैटर्न वगैरह नहीं पता कि क्या है, तो मोस्टली यही चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और आप लोगों ने ये बुक थॉरोली पढ़नी है। तो इसके अलावा कोई इशू होगा तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। जो कंटेंट्स वगैरह है वो पेपर के यानी पैटर्न के मुताबिक देख लेंगे कि कितने हैं, क्या करना है। तो फिलहाल आप लोग ये सारी बुक को थॉरोली पढ़ें, जितने भी चैप्टर्स हैं इंक्लूडेड वो सारे आप पढ़ें थॉरोली। और ऑब्जेक्टिव यानी मोस्टली ये चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुए तो फिर देखेंगे कि किस तरह पैटर्न सेट वगैरह करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।